کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ بی ایس یدیورپا کا دوبارہ بی جے پی میں شامل ہونا طے مانا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے بھی یدیورپا کو دوبارہ پارٹی میں شامل کرنے کا صاف اشارہ دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ یدیورپا نے بی جے پی سے الگ ہو کر کے جے پی کے نام سے اپنی الگ پارٹی بنا لی تھی۔ اور بات ہے دکن نامے کی طرف۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے سابق صدر جمہوریہ آن جہان نیلم سنجیوا ریڈی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پرنب مکھرجی نے اننت پور میں نیلم سنجیوا ریڈی کی 100 سالہ تقاریب کے اختتامی پروگرام میں شرکت کی۔ اس تقریب میں ریاست کے گورنر ای ایس ایل نرسمہن، وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی اور ریاستی وزراء نے شرکت کی۔ صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی نے پیر کو آندھرا پردیش کے اننت پور ضلع کا دورہ کیا۔ حیدرآباد سے خصوصی طیارے کے ذریعے صدر جمہوریہ ہند پٹپرتی پہنچے۔ وہاں سے وہ بذریعہ کار اننت پور روانہ ہوئے، جہاں صدر جمہوریہ ہند نے سابق صدر جمہوریہ آن جہانی نیلم سنجیوا ریڈی کے 100 سالہ تقاریب کے اختتامی پروگرام میں شرکت کی۔ پرنب مکھرجی نے کہا کہ نیلم سنجیوا ریڈی نے ملک کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ پرنب مکھرجی نے اس تقریب میں اپنی شرکت پر مسرت کا اظہار کیا۔ I am very happy to join you today at this concluding event of the centenary celebrations of former President Dr. Neelam Sanjeev Reddy. It is with the greatest respect that I pay homage to my illustrious predecessor and warmly recall his exceptional leadership quality. ریاست کے گورنر ای ایس ایل نرسمہن اور وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور نیلم سنجیوا ریڈی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ముఖ్యంగా ఈ తరం రాజకీయ నాయకులకు గొప్ప స్ఫూర్తి మార్గదర్శకం। తెలుగు వారందరూ గర్వించదగ్గ గొప్ప నాయకుడు శ్రీ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు। ఆ మహానయునికి వినమ్రంగా నీ వల్లి అర్పించుతున్నాను। నీలం అంటే వజ్రం, నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఒక తెలుగు వజ్రం। ఇట్లాంటి ఒక మహానుభావుడి గురించి మనం ఈ రోజు జ్ఞాపకం చేసుకుంది ఎంతో మన భాగ్యం అని అనుకుంటున్నాను। సంజీవరెడ్డి మాదిగా ఉండాలి అని ఒక గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ఆ మహానుభావుడు పుట్టిన గడ్డలో మీ అందరినీ ప్రత్యేకంగా చిన్నారులను పలకరించేదానికి వచ్చిన మన ప్రియతమ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు సంజీవరెడ్డి గారి గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటేదానికి ఈరోజు అనంతపురానికి వచ్చారనేది స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది। आजहानी नीलम संजीवा रेड्डी से वाबस्ता शख्सियतों को इस मौके पर तहनीयत पेश की गई। काबिल गौर बात यह है कि रियासती वजीर शैलजा नाथ ने तकरीब से खिताब करते हुए रियासत को मुत्तहिद रखने की सदर जमहूरिया से अपील की। सदर जमहूरिया के अनंतपुर दौरे के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी पीवी नरसिम्हा राव की आज 9वीं बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर पीवी ज्ञान भूमि में खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। सरकरदाली डॉ ने पीवी ज्ञान भूमि पहुंचकर आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को खिराज अकीदत पेश किया। खिराज अकीदत पेश करने वालों में राज्यसभा के रुकन वी हनुमंत राव, रियासती वजीर पी लक्ष्मैया, बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय और दीगर शामिल हैं। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन वी हनुमंत राव ने हैदराबाद शहर की सड़कों की खस्ताहाली के लिए जीएचएमसी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में शिरकत की और हैदराबाद शहर की सड़कों की खस्ताहाली पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर धन सिंह की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हनुमंत राव ने शहर की सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत करने का
मुतालबा किया। Friends, irrespective of all political parties, corporators, तो आप बोलना, आप डिस्ट्रिक्ट फ्लोर लीडर है पूर्व के तरफ से, आप बोलना आज दिन तक हम पूछे। कस्तूरबा विद्यालय में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने आज महबूबनगर जिले के तेलंगाना चौरास्ते पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने उन्हें मुस्तकिल करने और कम अज कम उजरत देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो तवील अरसे से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मुलाजमत की जमानत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर परेशान हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह हेल्थ कार्ड और मरात देने का भी मुतालबा किया। ఎందుకంటే మనకి చదువుకునే టైం లేదు, మనల్ని చదువుకోనియరు, ఇక్కడ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ కి చదువుకోనియరు, ప్లస్ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सिस्टम को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में आरटीए दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। ग्रेटर हैदराबाद नंबर प्लेट्स मेकर्स ने ये एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की स्कीम की अमलावरी से शहर में सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत उन्हें रोजगार फराहम करने की बजाय उनका रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए कॉमर्स डी पुरंदेश्वरी ने तेलंगाना बिल पर शदीद नुक्ताचीनी की। पुरंदेश्वरी ने कहा कि तेलंगाना बिल मुकम्मल नहीं है, इस बिल में कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि दस्तूर में मुश्तरका दारुल हुकूमत की कहीं गुंजाइश नहीं है। पुरंदेश्वरी ने कहा कि तेलंगाना मसौदे में तरमीम नहीं की गई तो वो पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालफत करेंगी। ఉమ్మడి రాజధాని అనేటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది అసలు మన రాజ్యాంగంలోనే లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్ లో జాయింట్ క్యాపిటల్ అనేటువంటి పదం ఎక్కడా కూడా వాడనటువంటి నేపథ్యంలో ఒక జాయింట్ క్యాపిటల్ ఏ విధంగా మీరు హైదరాబాద్ ని డిక్లేర్ చేస్తారనేటువంటి విషయాన్ని నేను రేజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా నాకు సంబంధించి మన ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి 300-400 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి ఇంకొక రాష్ట్రం నుండి మన రాష్ట్రాన్ని పాలించడం అనేది అది ఒక రకంగా మన ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీయటమేనని చెప్పి నేను భావించడం జరిగింది. కనుక దాన్ని ప్రధానంగా నేను కోట్ చేస్తూ నేను లేఖ రాశాను. అదేవిధంగా పోలవరానికి వచ్చి జాతీయ హోదా కల్పించినందుకు వారి కృతజ్ఞతలు నేను తెలియజేస్తూనే ముంపు ప్రాంతం అంతా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వారికి ఏ విధంగా కూడా ఉపయోగపడినటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ కి వారి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భూమిని ముంపుకి గురి చేస్తూ ఏ విధంగా మాకు సహకరిస్తారని కూడా నేను వారిని ప్రశ్నించడం జరిగింది. तकनामी में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़े दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ही टीवी उर्दू पर। तकनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आसाम के जिला चीरान में रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर का अगवा कर लिया गया। बोडो मिलिटेंट्स ने चीरान के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर खिदमात अंजाम दे रहे अंकन राव नामी सीनियर इंजीनियर का अगवा कर लिया है। मगुया इंजीनियर के अफराद खानदान ने हुकूमत से फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए इंजीनियर की रिहाई के इक़दाम करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल फरवरी में भी रियासत से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर का अगवा किया गया था, जिन्हें कुछ दिन बाद रिहा कर दिया गया।
अलहदा रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के साथ इंसाफ के मुतालबे को लेकर हैदराबाद में तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का रियासती कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन में तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम, जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास गौड़ और दूसरे लीडरों ने शिरकत की। सारी दुनिया में इसको आम करें। रियासत तेलंगाना के कयाम और उसके बाद तेलंगाना में मुसलमानों को दूसरे तबकात के बराबर समाजी और माशी इंसाफ के हुसूल के मकसद से कायम की गई तंजीम तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का रियासत गिर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में फोरम के जिलाई और रियासती सतह के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर मधु मुस्लिम लीडरान ने जहां तेलंगाना जिद्दोजहद से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया, वहीं रियासत तेलंगाना के कयाम के बाद अक़लियतों खासतौर पर मुसलमानों के लिए यकसा मौक़ों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद के अज़्म का इजहार किया। अगर हम इक़्तिदार में शरीक नहीं बन रहे हैं, हमको कहा जा रहा है कि साहब कब्रिस्तान की दीवार बना देते, मस्जिद को चुना डाल देते, हम तो समझिए कि साहब इस मुल्क में 60 साल से अपनी निगरानी आप कर लेते आए। तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम जो है सो 1969 से डॉक्टर बसू जाफरी साहब, प्रोफेसर रिटायर्ड उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो इसके बानियों में से है, उस वक्त से आज तक अपने लिमिटेड मीन्स में तेलंगाना के मुसलमानों में शऊर को बेदार करने के लिए सरगर्म रहा है। तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के कन्वेंशन में मधु तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों श्रीनिवास गौड़ और प्रोफेसर कोदंडराम ने ये यकीन दिलाया कि अलहदा तेलंगाना जमहूरियत और सेक्युलरिज्म की मिसाल होगा। किसको नुकसान हुआ बोले तो मुसलमानों को नुकसान हुआ। 48% एम्प्लॉयज जब थे, अब देखो 1% भी नहीं है मुसलमान। एम्प्लॉयज में कम हो गए, बिजनेस में कम हो गए, हर एक चीज में अब क्या मिल गए बोले तो वो ड्राइवर पोस्ट था, वो भी बैन हो गया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर से। किधर भी देखे तो रोड के ऊपर देखे तो पूरे के पूरे अपने लोग ही रहते। एक जमाने में इतना नवाब का जैसे अपना हम रहते थे। तेलंगाना का रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रहा है आज, तो यहाँ की मुद्दा तेलंगाना का रिकंस्ट्रक्शन, खासकर हम चाहते हैं सेक्युलर तेलंगाना। ये डिमांड में कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हम है जमहूरियत में और हमारा हिंदुस्तान की दस्तूर हिंदुस्तान को एक जमहूरियत बनाना चाहते हैं। और जमहूरियत की मतलब हर आदमी बराबर। हर आदमी बराबर कब हो सकता? जब मजहब के नाम पर कोई डिफरेंसेस नहीं रहता, तभी हम जमहूरियत बन सकते। सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी का एक दूसरी पहलू है। इस कन्वेंशन में तहरीक तेलंगाना के लीडरान ने तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना के अवाम खासतौर पर मुसलमानों के लिए इंसाफ के हुसूल के मकसद से अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। विजयनगरम जिले के कोरुकुंडा मंडल में वाक़े सैनिक हाई स्कूल में आज से सालाना एथलेटिक्स मुकाबले शुरू हुए। जिला एसपी तफसीर इकबाल ने इन मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इन मुकाबलों में विजयनगर जिले के एथलेटिक्स हिस्सा ले रहे हैं। तफसीर इकबाल ने इन मुकाबलों के इनकाद पर इंतजामिया की सताइश की और कहा कि तंदुरुस्त रहने के लिए खेलकूद जरूरी है। Function, and really I feel very happy over here to see such a good balanced parade which was done by March Past, which was done by students of the school. Really it is showing their capability, efficiency and their discipline. So once again I am giving my best wishes for the school and my best wishes for their annual athletic meet. मौजूदा दौर में मुल्क भर के नौजवानों में क्रिकेट का जुनून सवार है, लेकिन जिला महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले 3 भाई वॉलीबॉल के माहिर खिलाड़ी हैं।
انہیں والی بال سے اتنا لگاؤ ہے کہ والی بال میچز کھیلنے کی خاطر یہ تینوں ذاتی خرچ پر ملک کی مختلف ریاستوں کا دورہ کرتے ہیں۔ یہاں دکھائی دینے والے والی بال کے یہ 3 کھلاڑی رشتے میں بھائی ہیں۔ ان کھلاڑیوں کے نام سید حذیفہ، سید واصف علی اور محمد عثمان ہے۔ ضلع محبوب نگر کے شاد نگر سے تعلق رکھنے والے ان تینوں بھائیوں کو بچپن سے ہی والی بال سے دلچسپی تھی۔ والی بال کے ماہر ان تینوں بھائیوں نے مختلف میدانوں میں بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ سید واصف انڈر 19 کے کھلاڑی ہیں اور محمد عثمان انڈر 14 ٹیم کے کپتان، جبکہ سید حذیفہ نے کئی انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹس میں حصہ لیا ہے۔ مقامی مسجد سے متصل گراؤنڈ سے کھیل کا آغاز کرنے والے ان تینوں کھلاڑیوں کا مقصد انٹرنیشنل سطح پر والی بال ٹیم کی نمائندگی کرنا ہے۔ اپنے والد اسد مختار کے ہمراہ بچپن سے مقامی مسجد میں یہ تینوں نماز ادا کرنے جایا کرتے اور وہیں مسجد سے متصل صحن میں واقع چھوٹے سے میدان میں تینوں نے والی بال کی پریکٹس کا آغاز کیا۔ تینوں نے ریاستی اور قومی سطح پر والی بال کے مختلف میچز میں عمدہ مظاہرہ کرتے ہوئے کئی ایوارڈز اور میڈل حاصل کیے۔ معاشی تنگی کے باوجود کبھی انہوں نے اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستانی ٹیم کی جانب سے والی بال میچز کھیلنا ان کا مقصد ہے۔ అని అక్కడ చాలా మంచి టీం రైల్వే ఇంకా మాది కూడా టీం అట్లా కావాలని కోరుతున్నాము। నేషనల్ గేమ్లో అండర్ 19 ఆడాను, డిస్టిక్ అండర్ 19 సాంగీర్ తారా డిస్టిక్లో ఆడినాం। ఇంకా వెస్ట్ బెంగాల్లో నేషనల్ సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది। دوسری جانب ان کے والد اسد مختار کا کہنا ہے کہ معاشی تنگدستی کے باوجود انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی بچوں کے کھیل پر صرف کر دی ہے۔ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మాది, చేయాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు। నాకు 2 కొడుకులు 2 బిడ్డలు, 2 పిల్లలు పెద్దోళ్ళు, అమ్మాయిలేమో చిన్నోళ్ళు। వాళ్ళు ఒక డిగ్రీ మన ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు ఒక అబ్బాయి, ఒక అబ్బాయి ఏమో డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నాడు। ఇంకా వీళ్ళు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆడాలని నా కోరిక ఉంది। అందు గురించి వీళ్ళ గురించి నేను చాలా కష్టపడుతున్నా, వీళ్ళ గురించి నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నా। ఇక్కడ ఇలా టోర్నమెంట్స్ ఉంటే నేను పోయి వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటా۔ مقامی افراد اور عزیز و اقارب کا کہنا ہے کہ ان نوجوان کھلاڑیوں کی اگر مناسب حوصلہ افزائی کی گئی تو یہ تینوں قوم و ملت کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ای ٹی وی نیوز محبوب نگر۔ اے پی ایس آر ٹی سی کے ملازمین اور مزدوروں نے ایک بار پھر ہڑتال کی کال دی ہے۔ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے اور عبوری بھتہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آر ٹی سی کے مزدور یونینوں نے آج ادارے کے ایم ڈی پورن چندر راؤ کو ہڑتال کی نوٹس دی۔ یونینوں کے نمائندوں نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو وہ 6 جنوری سے ریاست بھر میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کریں گے۔ نوٹس دینے والے نمائندوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے 19,000 کانٹریکٹ ڈرائیورز اور کنڈکٹروں کو مستقل کرنے کا تحریری یقین دلایا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے۔ اکنامی میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد۔ نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہیں چھٹکاؤ نے جے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیزن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ گر فردوس بروئے زمی است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اکنامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حیدرآباد میں یونانی میڈیسن کے طلباء اور جونیئر میڈیکل افسرز کی ہمت افزائی کے لیے یونانی طب پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار میں ملک بھر سے شریک یونانی اطباء نے طب کے مختلف میدانوں میں اپنی تحقیق پر مقالے پیش کیے۔ The first foremost important thing
अपने अल्लाह ताला की बारगाह में I'd like to take the privilege of inviting the chief guest of the gathering, that is Ascent. दूसरी अहम बात कि जो चीज आप इसके साथ तफसील है गैर यूनानी मेडिकल एसोसिएशन यानी उमा के नाम से हम लोग 2000 से काम कर रहे हैं। ये एक एनजीओ है जिसके तहत यूनानी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूनानी के जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आज एक रोज़ा मौलेजाती सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज करे हैं। उस सेमिनार के अंदर पूरे जूनियर डॉक्टर्स 20 से ज़ायद पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिसमस के पेश नजर गुंटूर में ग्राहकों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए निजी होटल्स फूड फेस्टिवल का एहतमाम कर रहे हैं। इसी ज़िमन में गुंटूर की एक होटल में बिरयानी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस फेस्टिवल में खाने का ज़ौक़ रखने वालों के लिए हम अक़साम के पकवान पेश किए गए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जिला वरंगल के ईटू नागारम पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल संदीप ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक संदीप ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। साथ ही कांस्टेबल्स का कहना है कि खुदकुशी का सबब घरेलू तनाज़ात हो सकते हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। अंजानी नीलम संजीवा रेड्डी की शख्सियत मिसाली। अनंतपुर में मुनक्किदा 7 साला तकरीब से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का खिताब। तेलंगाना मुसवदे में तरमीम न करने पर पार्लियामेंट में बिल की मुखालफत की जाएगी, पुरंदेश्वरी का बयान। और हैदराबाद शहर की खस्ता हाल सड़कों के लिए जीएचएमसी के अहदेदार जिम्मेदार। जीएचएमसी के इजलास में हनुमंत राव ने जताई बरहमी। दकनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ही टीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग।
जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की जम्मू में सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदारों से मीटिंग, सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट पर 15 रोज के बाद काम दोबारा शुरू, जिला इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद लोगों का एहतजाज खत्म। हौसनगर जम्मू कौमी शाहराह आज दूसरे रोज भी रहा बंद, सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरबानदार। और अब खबरों की तफसील। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने जम्मू में रियासत की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अनिल गोस्वामी ने पुलिस, फौज, नीम फौजी अमले और खुफिया एजेंसियों के ओहदेदारों की एक आला सतही मीटिंग की भी सदारत की। मीटिंग में सरहद पर दरानंदाजी, मिलिटेंसी और इससे निपटने के इक़दाम का जायजा लिया गया। सरहद पर कोहरे के सबब दरअंदाजी के खतरा से निपटने के लिए किए गए इक़दाम से भी दाखिला सेक्रेटरी को आगाह किया गया। 2 घंटे तक चलने वाली मीटिंग में गोस्वामी ने रियासत में सिक्योरिटी इंतजामात और चौकसी को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत दी। सज्जाद अहमद किचलू को दोबारा वजीर बनाने के खिलाफ जम्मू में दूसरे रोज भी बीजेपी की कॉल पर बंद रहा। बंद के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर रहा और तिजारती इदारे भी बंद रहे। ताहम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दौड़ता नजर आया। इसी दौरान बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। बीजेपी किचलू को क्लीन चिट देने के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पार्टी का कहना है कि जम्मू में 2 रोजा बंद की कॉल कामयाब रही। जनता पार्टी ने जो बंद की कॉल थी वो कामयाब रहा है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द
किचलू को मिनिस्ट्री पद से उतारे और जो नुकसान किश्तवाड़ में लोगों का हुआ है उसकी भरपाई